Hello everyone. In today's video, we will try to understand कि हम लोग by using DOM and by using document object, how can we access the elements, and then how and what are the different ways in which we can modify those elements. Okay, so basically, what are the different ways? What way we are going to modify the elements? Okay, so for example, I'll just take an example over here. For example, we have a div tag. Okay, to this div tag, we must be having some class, okay, some id maybe. Okay, so you have closed it over here, then you have some text like hello students. Okay, and then you have a closing div tag. Okay, so in an entire html, what are the different things you have one over here, which is your element. Okay, then you have multiple attributes. Okay, then you have some inner text, you have some text or content or some inner content. Okay, and that's it. Okay, so these are the different things that you have inside element. So we basically modify three, majorly we try to modify three things inside an html element. Tag name we cannot modify, we should not be even modifying the tag name. Okay, so we do not modify the tag name. First thing that we modify is the text content that is present inside it. Okay, so we'll talk about two functions today, that what is the difference between inner text versus inner html. Okay, so this is first thing, which is text content. If you want to modify the text content, you can modify the text content. Okay, so I'll just access this div element. So very first thing we can modify is your text. We will access this element, document.getElement by id, element access kya, and then we can say that dot inner text. Okay, and then we can provide hi over here like this. अगर आप ये करोगे, so it will get modified to div and then hi and then closing div like this. Okay, इस तरह से आपका HTML element will get modified. Okay, so now this is known as your inner text. Okay, inner text means कि the div tag, when what the div tag you have, okay, उसके अंदर जो भी the text that is written, that will be your inner text. Okay, even if you have multiple tags as a child tags inside it, तो उन tags के अंदर भी जो भी content जो होगा, the text that you will be having, text as in वो कंटेंट जो कि आपके वेब पेज पर विजिबल होगा, दैट स्पेसिफिक कंटेंट आपका इनर टेक्स्ट के इक्वल होता है. ओके, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक HTML एलिमेंट सेट करना है, कि फॉर एग्जांपल मुझे इस डिव टैग के अंदर कोई हेडिंग ऐड करनी है. ओके, सो इन दैट केस इफ़ यू वांट टू ऐड एनी HTML एलिमेंट, तो उस केस के अंदर आप इनर HTML यूज़ करोगे. ओके, सेम स्ट्रिंग लो, h1 ऐड करो एंड देन क्लोज इट एंड देन हेलो and then close your h1 tag once again and then close your string also. Okay, so this is known as your inner html. Inner html includes the tag also. अगर ये सेम h1 आप inner text में लिखोगे, तो inner text will just treat it like as a normal text only, और वो h1 को भी वहाँ पर print कर देगा. Okay, so this is the difference between inner text and inner html, कि inner html scan करता है पूरे text को, अगर उसके अंदर कोई भी HTML एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसको कंसिडरेशन में लेकर के फिर वो आपका डॉम अपडेट करता है. ओके, वेयर एज इनर टेक्स्ट डू नॉट कंसिडर एनीथिंग. जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे, इट विल जस्ट डायरेक्टली एड इट टू योर इनर टेक्स्ट. ओके, दैट इज नोन एज योर इनर टेक्स्ट. इनर HTML इज योर, जो आपके ऑल द HTML एलिमेंट्स को कंबाइन करके होगा. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट, कंटेंट, ये सब, तो हम लोग ये सारे पॉइंट से रेफर करते हैं. हम लोग टेक्स्ट भी कहते हैं, हम लोग कंटेंट भी कहते हैं, इनर HTML भी कहते हैं. ओके, इनर टेक्स्ट भी कह सकते हैं. ओके, सो इस सब चीज़ों किसी को मॉडिफाई करना हो, सो वी कैन यूज़ इनर टेक्स्ट और इनर HTML. ओके, कभी भी आपको एट्रीब्यूट सेट करना है तो आप लोग डायरेक्टली यूज़ करोगे सेट एट्रीब्यूट फंक्शन. ओके, सो वो एक स्पेसिफिक है कि आप लोग हमेशा सेट एट्रीब्यूट फंक्शन ही यूज़ करते हो. सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पर आपका फर्स्ट पैरामीटर होता है कि आपको किस एट्रीब्यूट का वैल्यू सेट करना है. सो फॉर एग्जांपल मुझे आईडी का सेट करना है, सो एंड देन नेक्स्ट आई विल प्रोवाइड द वैल्यू, कि मैंने यहाँ पे हमारा वैल्यू प्रोवाइड कर दिया. ओके, सो इन दिस वे आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर सकते हो. नेक्स्ट कम्स इज लाइक, अगर आपको किसी एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज करनी हो, ठीक है, सो आई जस्ट से कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. ओके, और फिर उस एलिमेंट डॉट स्टाइल. ओके, सो थर्ड वुड बी योर स्टाइलिंग. अगर आपको उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, सो डॉट स्टाइल एंड देन डॉट, फॉर एग्जाम्पल हमें कलर चेंज करना है, तो उस केस के अंदर हम लोग कलर ऐसे करके रेड प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इन दीज आर द थ्री डिफरेंट वेज जिसकी हेल्प से हम लोग
एलिमेंट का बेसिकली हम लोग स्टाइल और मॉडिफिकेशन करते हैं. ओके, सो लेट्स गो इनटू द VS कोड एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सब चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं. ओके, ये हम लोग का HTML कोड है, बेसिक HTML है. आई क्रिएट अ न्यू एलिमेंट इनसाइड होवर हियर, जिससे हमारे पास में फ्रेश स्टेटमेंट्स हो. ओके, आई क्रिएट अ div element के अंदर आई प्रोवाइडेड सम ID and I'll say it is a container. Okay, we don't have any other container ID, so we can use this container. Okay, हमेशा always remember this thing कि आपके पास में existing ID नहीं होना चाहिए, नहीं तो it will start giving you the errors. Okay, so comment this code and then comment. This is already commented. Okay, so इसको comment कर दो and then we have created container. Okay, यहाँ पर हम लोग कुछ एक basic text लिख देते हैं, MERN stack. Okay, like this we have written over here. Okay, नाउ लेट्स रीलोड इट. हमारा एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट मॉडिफाइंग इट. ओके, हम लोग एक कॉन्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं कि एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट. सो गेट एलिमेंट बाय ID और इसके अंदर हम लोग हमारा ID प्रोवाइड कर देते हैं. दैट वाज योर कंटेनर. ठीक है, अब नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट कि आपका एलिमेंट क्या है. ऑलवेज रिमेंबर कोडिंग बिकम्स ईजी एंड कोडिंग बिकम्स लवेबल जब आपको पता हो कि आपकी कोड में हर एक लाइन पर क्या आउटपुट आ रहा है. इफ़ आपको नहीं पता है तो यू विल स्टार्ट हैविंग अ फियर अबाउट इट कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, एंड देन आई डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. राइट, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर डूइंग ऑल द टाइम. ओके, नहीं समझ में आया सो डोंट डू इट. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस स्टेटमेंट फर्स्ट, तभी नेक्स्ट पर जाओ. अदरवाइज कोई मतलब नहीं है टू क्रिएट अ प्रेशर फॉर योर सेल्फ. ओके, सो ये हम लोगों का एलिमेंट आ गया. ओके, ये हम लोग का एलिमेंट है. नाउ इफ यू वांट टू चेंज इट्स टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट इनसाइड इट, तो एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, सो व्हाट आई कैन डू, करेंटली इट इज़ MERN stack. आई विल से MERN full stack course. ओके, सो course. सो दिस इज़ योर अपडेटेड MERN full stack course. आप नोटिस करोगे यहाँ पर भी अपडेट होगा, यहाँ पर भी अपडेट होगा. ओके, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम हियर ओनली. ओके, सो योर इनर टेक्स्ट इज अपडेटेड. अगर इसी सेम इनर टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे H1 ऐड कर दूँ. ओके, इफ़ आई ट्राई टू ऐड इट एज H1 ओवर हियर, थिंकिंग कि ये कंसिडर करेगा मेरे इस एलिमेंट को और इसको H1 की तरह लोड करेगा, तो ऐसा नहीं होगा. ओके, इनर टेक्स्ट विल ट्रीट इट लाइक अ टेक्स्ट ओनली और वो एज अ टेक्स्ट उसको लोड कर देगा. पर अगर आप सेम चीज़ इंस्टेड ऑफ डूइंग इट विद इनर टेक्स्ट, ओके, वन सेकेंड, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस विद इनर टेक्स्ट, अगर आप इनर HTML के साथ करते हो तो इनर HTML आपका वर्क करेगा. इनर HTML, इसको सेव करो एंड देन यू विल बी हैविंग इनर HTML लोडेड ओवर हियर. सिंस आपने स्टेटमेंट में चेंज करते गए हो, इस वजह से लास्ट लाइन ही लोड हुई है. ओके, सो आपका इनर HTML जब आप H1 टैग्स ऐड करते हो या फिर कोई भी H1 एलिमेंट ऐड करोगे तो वो उसको ट्रीट करेगा, उसको कंसिडर करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वापस से लोड करेगा. ओके, सो दैट इज़ हाउ आप उसका टेक्स्ट और HTML आप मॉडिफाई कर सकते हो. ओके, अगर हमको उसका स्टाइलिंग चेंज करना हो, एलिमेंट डॉट स्टाइल फॉर एग्जांपल, मुझे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है. ठीक है, आई वांट टू कीप इट एज रेड एंड ऑल्सो आई वांट कि एलिमेंट डॉट स्टाइल के अंदर वो सब प्रॉपर्टीज़ होंगी जो भी आपने CSS के अंदर ऐड करी है. तो जस्ट थिंक ऑफ दैट वर्ड कि आप क्या चेंज करना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट राइटिंग, सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि एग्जैक्टली प्रॉपर्टी क्या है. ओके, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई वॉन्ट टू चेंज द टेक्स्ट कलर. ओके, सो आई विल जस्ट से कलर एंड देन यू विल गेट इट एंड आई वॉन्ट टू मेक इट येलो. ओके, लेट्स रीलोड इट एंड यू विल बी हैविंग योर एलिमेंट प्रेजेंट ओवर हियर. ठीक है, ये आपका डिव कंटेनर है. एंड अब सेंस ये इस तरह से क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी कंटेनर है जिसके अंदर एक और एलिमेंट है विच इज़ योर H1 टैग. ओके, सो नाउ आफ्टर दिस वन, अगर आपको किसी एट्रीब्यूट को सेट करना है यहाँ पे, दैट ऑल्सो यू कैन डू एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट. लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे ID देना है उसको. ठीक है, सो आई कैन गिव ID ओवर हियर एंड देन आई कैन गिव सम ID वैल्यू दैट इज़ हेड. ओके, लाइक दिस. तो अगर आपको ID जब सेट एट्रीब्यूट करना है तो इस तरह से वर्क करेगा. फर्स्ट पैरामीटर दैट इट विल टेक वुड बी द एट्रीब्यूट नेम और सेकंड जो भी होगा उसका वो वैल्यू होगा. यहाँ पर आपका स्टाइल ऐड हो गया जिसमें बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया, आपका कलर ऐड हो गया एंड देन यहाँ पर आपका ID भी ऐड हो गया, विच मीन्स आपका एट्रीब्यूट भी ऐड हो चुका है. ओके,
एंड अगर आप इसको ओपन करोगे यू विल सी आपका इनर HTML इनर टेक्स्ट भी अपडेट हो गया है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट आपके HTML डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली मॉडिफाई करने के लिए भी. ओके, so in this video, like to summarize this video, in this video we have covered what is the difference between inner text versus inner HTML. आप किसी भी HTML element को in what are the different ways you can modify any HTML element. So there are majorly three ways. First is access that element and then change its text content, inner HTML and its text content, its inner HTML. That is the first way. Second way is to modify its styling, okay, which means its color, background color, anything regarding its like view wise, okay, look wise, anything regarding its styling. And third one is to finally set any attributes that is a part of the element. अगर आपको कुछ न्यू एट्रीब्यूट सेट भी करना है तो भी आपका सेट एट्रीब्यूट फंक्शन वर्क करेगा. ओके, आईडी हमने न्यू ही सेट किया है, अगर एग्जिस्टिंग है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो. ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.